এবং একই সাথে তিনি অ্যাডজাঙ্ক প্রফেসর জিফু ইউনিভার্সিটি, জাপান। তো দাদা আজকে আলোচ্য বিষয়টা আলোচনা করবেন। অধ্যাপক লিঙ্গরাজ সাহুদাকে অনুরোধ করব তার বক্তব্য শ্রী শ্রী ঠাকুরের আতুল চরণে নিবেদন করার জন্য। দাদাকে পেয়েছি, উনি সময় দিয়েছেন। আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল টু ইউ দাদা, এবং পরমপিতা আপনার মঙ্গল করুন, আমি এই প্রার্থনা তার শ্রীচরণে জানাই। শ্রদ্ধা দাদা মায়েরা, আজকে আমাদের অন্যতম আরেকজন স্পিকার প্রফেসর লিঙ্গরাজ সাহুদা, দাদাকে অনুরোধ করছে তার বক্তব্য ঠাকুরের চরণে পেশ করার জন্য। জয় গুরু, জয় গুরু। जय परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परम राधा जगत जननी श्री श्री बड़मा, जुगाचार्य परम पूज्यपाद श्री श्री बड़ोदा, प्रधान आचार्य देव पूज्यपाद श्री श्री दादा, पूज्यपाद श्री श्री बाबाईदा, पूज्यपाद श्री श्री अविंदा, सभी के चरण में मेरे शतकोटि प्रणाम। श्रद्धेय अंजनदा, आज के ये ढाका ऑनलाइन सत्संग बिहार अनुकूल आयोजित आज के ऑनलाइन सत्संगे उपस्थित समस्त पवित्र पांजाधारी ऋतिक वृंद, इष्टप्राण गुरुभ्राता एवं करुणामयी मातृमंडली सबाई के हमार आंतरिक जय गुरु। जय गुरु। हमार परम सौभाग्य श्रद्धेय अंजनदा आज के আমাকে চান্স আজকে সুযোগ দিয়েছেন কি আমি শ্রী শ্রী ঠাকুরের মহিমা বর্ণনা করার কারণে, এই কারণে আমি ওনাকে অন্তর कृतज्ञता ज्ञापन करছি। আর শ্রী শ্রী ঠাকুর কি অসীম মহিমা এই কোনো শব্দ দিয়ে বর্ণনা করা যেতে পারে না। তো আমি এরকম বুঝি যা ই হয়। আজকে ওনার যে আমি দর্শন পেয়েছি, শ্রী শ্রী ঠাকুরের যে দর্শন পেয়েছি, অনুভব করতে পারছি, কিছু কিছু ঘটনার মাধ্যম দিয়ে আমি ওনাকে অনুভব করতে পারছি। তো আজকে এই ঘটনার মাধ্যম দিয়ে আমি চেষ্টা করব বর্ণনা করার কারণে। আমার বাঙালি খুব অত ফ্লুয়েন্সি না, আমি হিন্দিতে বলবো, কখন কখন বেঙ্গলিতে বলবো। আপনি আমার ভাব নিয়ে বোঝার কারণে চেষ্টা করবে, আর কিছু ভুল থাকলে আমাকে ক্ষমা করবেন। तो अनुश्रुति ग्रंथ में श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं कि तुम जो करोगे, जिसको धारण करोगे, पाओगे उस तरह उसका फल। जैसे जिसको धारण करोगे पाओगे उस तरह उसका फल, वही है विचार ईश्वर की। आकाश में उठे सागर की जल, बोलते हैं आकाश में उठे सागर की जल, यही है विचार ईश्वर की। जिसको तुम धारण करोगे उस तरह तुम उनको पाओगे, उसका फल तुम्हारे उसी तरह फलन होगा। तो ये तो प्रश्न उठे कि আমি কাকে ধরব, কাকে ধারণ করব, আর আমার কাকে ধরলে আমার কর্ম তার মতো হবে, আর আমার প্রাপ্তি भी তার মতো হবে। তো আমার ঈশ্বর কে? আমার যখন আমি দীক্ষা নিয়েছিলাম, আমি তো ঠাকুরের দর্শন পাইনি, কি পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা ওনার তো দর্শন আমার ছিল। তো আমি দেওঘর তখন যাইনি, আর আমার ভুবনেশ্বর থেকে দীক্ষা নিলাম। নিজের একটু মানে একটু ঘটনার মাধ্যম দিয়ে আমি দীক্ষা নিলাম। তো আমি তখন ভাবছিলাম আমাকে একটু সত্যানুসরণ আমার ঋতিক দাদা দিয়েছিলেন কি এই সত্যানুসরণ পড়বে, আর তার ঠাকুরের বাণী পড়ে আপনি অনুভব করার চেষ্টা করবে, আর খুব নিষ্ঠা সহকারে আপনি ইষ্টভূতি করবে, নাম ধ্যান করবে। বাস এই দুইটা করে আপনি চেষ্টা করবেন, আপনি নিশ্চয় ওনার দর্শন পাবে। আমি সব দিনে সকালবেলা উঠি নাম ধ্যান করি, আর তারপরে ইষ্টভূতি করি। আমি সত্যানুসরণ খুঁজে থাকে কি আমি কখন শ্রী শ্রী ঠাকুর যে ঈশ্বর, উনি তো ঈশ্বর, ওনার দর্শন কিরকম হবে। তো আমি সব সময় ভাবি, আমি কিছু ঘটনাক্রমে আমি বলবো। তো আমি সব সময় প্রার্থনারে, আপনারা সবাই প্রার্থনারে 2 বেলা আমি আরাধনা করি, প্রার্থনার মাধ্যমে আরাধনা করি, আর ये বলি কি মন্মাত শ্রী জগন্নাথ মত গুরু শ্রী জগৎ গুরু। তার মানে শ্রী জগন্নাথ, শ্রী শ্রী জগন্নাথ মহাপ্রভু, উনি পার্থিব গীতা মাধ্যম দিয়ে বর্ণনা আছে কি শ্রী শ্রী জগন্নাথ মহাপ্রভু বলেছেন কি আমার কোনো রূপরেখ নাই, আমার কোনো কর চরণ মানে হাত আর চরণ আমার নাই।
তাহলে আরাধনা কাকে করবি? আমার কর্ণ নাই, কান নাই, আমার নেত্র নাই, চক্ষু নাই, আমার নাসা নাই, তো আরাধনা কার রূপ দেখে করবি? তো শ্রী শ্রী জগন্নাথ বলছেন কি সদ্গুরুকে চরণে যখন যাবি, তার তাকে তার তার থেকে রাখবি নিজের চিত্ত, নিজের বুদ্ধি, নিজের বিবেচনা, তখন তোমার দুঃখ দূর হয়ে যাবে। তো শাস্ত্র শাস্ত্র এরকম বলেছে कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, ध्यान के माध्यम से गुरु का मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पाद, गुरु का पाद देखे पूजा दिया जाता है, मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, गुरु का वाक्य मंत्र है, मुख्य मूलम गुरुर कृपा दिए मुख्य है। तो কত সুন্দর শ্রী শ্রী জগন্নাথ যে পুরুষোত্তম উনি বলেছিলেন কি যুগ যুগ মে যুগ প্রয়োজন মে আমি আসবো নরলীলা করে। তো ঈশ্বর উনি পুরুষোত্তম, উনি এবার ধরাধাম में अवतीर्ण हुए छन जुग जुग में जुग प्रयोजन के हिसाब से सदगुरु के रूप में नरलीला करके, और उनके आश्रय में उनके चरण में हमें ले जाते हुए, और দুইটা শব্দ মাধ্যম দিয়ে উনি ধর্মকে কিরকম পালন করতে হবে খুব সুন্দর করে मार्गदर्शन दिएछन, बचना और बढ़ना। तो श्री श्री ठाकुर जी को जे सदगुरु के रूप में इस धराधाम में अवतीर्ण हुए हैं, तो उनको एक बार एक भक्त ने पूछा कि आप तो पुरुषोत्तम है, तो ये जो अवतार में आप आए हैं, तो पूर्ण अवतार में आए हैं, तो पहले तो आप 10 अवतार में आ चुके हैं, अपनी तो आगे 10 अवतार दिए आश्चन। तो ये अवतार का अर्थ, तो ठाकुर जी बोलते हैं अवतार का अर्थ अवतरित होना या उतरना, धराधाम में उतरना। हिंदू मान्यता के अनुसार जब जब दुष्ट का भार पृथ्वी पर बढ़ता है, और जब जब धर्म का हानि होता है, हानि मतलब ग्लानि होता है, अर्थात जब जब मानुष तार कर्तव्य ठीक रूपे पालन ना करे, तखन पृथ्वी पर भार बढ़े जाए, तब तब पापियों का संहार करने के लिए, भक्त को रक्षा करने के लिए भगवान अपने अंश अथवा पूर्णांश से लेके पृथ्वी पर शरीर धारण करके आते हैं। कखन उन्हीं मत्स्य रूप पर, कखन कूर्म, कखन बारहा, कखन नरसिंह, कखन वामन, कखन परशुराम, कखन भगवान श्री राम, कखन श्री कृष्ण, कखन श्री बुद्ध, और कखन कल्कि अवतार। ए पर्यंत कखन और कल्कि अवतार आया नहीं है। तो श्री श्री ठाकुर जी के चरण में गए दर्शन करने के लिए सुदूर ओडिशा के एक संगीत सम्राट, उन्हें खूब प्रसिद्ध संगीत सुधाकर बालकृष्ण दास, जखन उन्हीं देवघर गए श्री श्री ठाकुर जी के चरण में किछु गुरु भाई संगे गेलेन, उन्हीं तो अधिकित छिलेन। तो उन्हीं कार काछे शुने कि श्री श्री ठाकुर जे पुरुषोत्तम जीवंत ईश्वर, उनार के दर्शन करार कारणे उन्हीं गेलेन देवघर। तो उन्हीं जखन गिये उनार सामने प्रणाम करेছেন, तो श्री ठाकुर बोललेन उनाके, আমাকে আমি আপনার কথা শুনে খুব ভালো লাগলো, আপনি খুব संगीत सम्राट, खूब प्रसिद्ध संगीत सुधाकर उपाधि निये आसছেন। तो श्री भगवान पुरुषोत्तम कारणे আপনি কি একটু গান পরিবেশন করতে পারবেন? তো উনি বললেন আগে আমি করতে পারি। পরে संगीत सम्राट संगीत सुधाकर बालकृष्ण दास একটু भजन परिवेशन करलेन। उनी हारमोनियम निये যখন आरम्भ करलेन, उनी निजेर एकटू रचना परिवेशन करले, तार रचना माध्यम दिए उनी पुरुषोत्तम जे श्री श्री जगन्नाथेर जे 10 अवतार, এই 10 अवतार के 10 छंद दिए गान माध्यम दिए परिवेशन करलेन। যখন উনি आरम्भ करलेन हारमोनियम बाजे, प्रथम अवतार যখন मत्स्य अवतार दिए वर्णना आरम्भ करलेन, तखन उनी कि देखलेन, हठाৎ करे देखलेन कि श्री श्री ठाकुर उनार सामने किन्तु मत्स्य अवतार दिए परिवर्तन हये गेलेन। सामने देखले श्री श्री ठाकुर मत्स्य अवतार रे कि उनी भय पेয়েছেন। তারপরে উনি ভাবলেন এরকম মনের কিছু চলছে। তারপরে যখন উনি ছন্দ দিয়ে কূর্ম, বারহা, নরসিংহ রূপ দিয়ে বর্ণনা করলেন, তখন উনি ঠাকুরকে দেখলেন, উনি ঠাকুর
শ্রী শ্রী ঠাকুর নরসিংহ রূপে ওনার সামনে দর্শন দিয়েছেন। তারপরে কি অদ্ভুত লীলা, কি অদ্ভুত দৃশ্য সঙ্গীত সুধাকর বালকৃষ্ণ দাস নিজের চক্ষুর দেখছেন। কি শ্রী ঠাকুর তারপরে বামন, তারপরে পরশুরাম, তারপরে ভগবান শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রী বুদ্ধ অবতারে ওনার সামনে দর্শন দিয়েছেন। उन्हीं तो गदगद हो गए, उनको आँख में, उनका चक्षु में जल चले আসলো। उन्हीं किंतु खूब भय पेये और कुछ वो कुछ समझ में उनको नहीं आया और भय पेये। जब गान खत्म होता है तो वो हारमोनियम रख के जाके साष्टांग प्रणाम में जाके गिर जाते हैं और हाथ जोड़ के बोलते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं जिनको वर्णना करने के लिए गान के माध्यम से, अपना रचना के माध्यम से कोशिश किया, अपने ये अपने मतलब ट्राई किया, तो आप तो स्वयं उनका रूप है। आपके माध्यम से जुग जुग में विभिन्न अवतार आप ही अवतरण किए हैं। तो मैं कितनी बड़ी मेरे भूल है, मैं आपको एक रचना, एक गान के माध्यम से कोशिश किया संभालने के लिए, आप तो खुद ही ईश्वर है के बोल के वो रो के जब प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम, ठाकुर जी खुश स्मित हास्य दे के बोलते हैं, जुग जुग में যখন প্রয়োজন হয় আমি মানুষ রূপে ধরধামরে আসি। तो जी है, तो श्री ठाकुर हम सब परम पिता के सृष्टि है, रचना है, एक जीवनी शक्ति लेके आए हैं। और श्री ठाकुर बोलते हैं हमारा आकांक्षित मंगल हमारा अंतर्निहित संस्कार में है। हम सब सत्यानुसरण पढ़े हैं, हम जानते हैं हमारा मंगल हमारे अंतर्निहित संस्कार में है और हम चाहते हैं हम जिए और आगे बढ़ें। उनके हमारा इस जीवन की मार्ग जितनी सहज है इतनी कठिन है, क्योंकि हम जाने अनजाने में बहुत सारे भूल कर बैठते हैं और हम वो जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य, ये सब जो रिपु है उसके बस में आ जाते हैं। अपने इच्छा को पूर्ण करने के चक्कर में हम भूल जाते हैं हमें क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। तब हम वृत्ति प्रबुद्धि में आबद्ध हो जाते हैं, तब हम पाप करना शुरू करते हैं। तब हमारा अंतर्निहित जो मंगल है वो मंगल फलता नहीं है। हमारा बुद्धि तो है, विवेचना तो दिए हैं, ईश्वर दिए हैं, पर हम उसको व्यवहार करना नहीं जान पाते हैं। तब हमारा जीवन एक असामंजस्य, एक असंतुलन हो जाता है और ध्वंस विध्वस्त हो जाता है। ऐसे ही कुछ मेरे जीवन कुछ साल पहले की बात है, जब दीक्षा नहीं लिया था, ऐसे ही कुछ असमंजस्य, असंतुलन होके चल रहा था, मन में एक संगति नहीं था और बहुत कष्ट था। तभी इस समय में मैं ऐसे ही कुछ परिस्थिति में आके दीक्षा लिया था और मेरे मन में बहुत प्रश्न था कि मैं दीक्षा तो लिया हूँ, मेरे जीवन में परिवर्तन कब आएगा। सत्यानुसरण पढ़ता था, एक गंभीर एक विश्वास था कि जैसे हमारे श्रद्धा अंजनदा आज के जो विषय वस्तु रखे हैं कि गंभीर विश्वास में सब कुछ संभव है। तो मेरे मन में था कि ठाकुर तो है जीवंत में, कब दर्शन होगा, कब मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा। तो अचानक देखता हूँ, 1 महीना हो गया था, मेरे मन में प्रश्न चल रहा था, अचानक देखता हूँ, सुनता हूँ कि गुवाहाटी श्री मंदिर में पूजनीय बाबादा आएंगे बोल के। मुझे बहुत खुशी हुई। परम पूज्यपाद आचार्य देव जो कि जीवंत ईश्वर है, जिनमें श्री ठाकुर जीवंत है, जागृत है, सक्रिय है और उनमें वो हर समय में जीवंत है, तो मूर्त है, तो उनका तो दर्शन नहीं हुआ है, पर उनका चतुर्थ पुरुष परम पूज्यपाद बाबादा यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनको जाके दर्शन करूँगा, जरूर मेरा ऐसे ही कुछ अनुभव होगा। मैं जाता हूँ और शाम का समय सन्ध्या प्रार्थनार परे আমি যখন নাটমণ্ডপে গিয়ে ওনাকে প্রণাম করি, খুব ভিড় ছিল, ভিড়ের মাঝে আমি বসে আছে দূরে, হঠাৎ করে আমার মনে চললো কি যদি আমি চান্স পাই আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা করবো, দাদা আমি তো দীক্ষা নিল এক মাস হয়ে গেল, আমার জীবনের পরিবর্তন কখন আসবে, কখন শান্তি আসবে, কখন আমি ওনাকে অনুভব করতে পারবো। তো আমার কিন্তু ভয় লাগলো, এতগুলো মানুষ বসছে, কি ভাববে আমাকে, কি একটু আইআইটির প্রফেসর আছে এখানে, কি এরকম উল্টা পুল্টা প্রশ্ন করে আছে, মনে হয় আমাকে রাখে দেবে, মানে আমাকে অনুমति दिवे ना। तो আমি ভাবছি তার কিছু সময় পর আমার আর कुछ समय के बाद हमारा वहाँ असंभव हुआ, हम बैठ नहीं पाए, पूछे ना पूछे धर्म संकट में आ गए और रोक नहीं पाए और
रुक नहीं पाए जाके और सोचे कि जो होगा देखा जाएगा। हम जाके एक कदम आगे गए हैं प्रणाम करके पूछने के लिए। एक कदम आगे जाके जब झुके हैं अचानक देखते हैं তখন আমি দেখলাম কি পিছনে একজন গুরু ভাই সুদূর গ্রামের মানুষ আসামে উনি দৌড়ে চলে আসলো। আসে একদম সাষ্টাঙ্গ প্রণাম হয়ে খুব উনি খুব আনস্টেবল ছিল আর উনি পূজনীয় বাবাজাকে জিজ্ঞাসা করলো দাদা আমি তো দীক্ষা নিলাম 3 মাস হয়ে গেল আমার তো কোনো জীবনে পরিবর্তন হলো না কখন হবে আমার জীবনে পরিবর্তন। এই শুনে আমার মনে খুব আনন্দ হলো জি হয় তাহলে তো আমার প্রশ্ন করার দরকার নাই আমার মানুষগুলো তো আর আমাকে ভুল বুঝবে না আমার প্রশ্ন কিন্তু উনি করে দিল। আমি তখন খুব আগ্রহ নিয়ে বসে আছে এখন আমি পিছনে চলে আসলো বসে আমি ভাবলাম এখন পূজনীয় বাবাইদা জি উত্তর দিবে এই উত্তরটা কিন্তু তার কারণে নাই এই গুরু ভাইয়ের কারণে আমার কারণে। আমি উনি নিশ্চয় দয়া করেছেন আজকে আমার প্রশ্ন আরেকজন গুরু ভাই মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করে দিলেন। আমি খুব আগ্রহ সহকারে হাত জোড়ে বসে আছে খুব গম্ভীর হয়ে পূজনীয় বাবাইদা ওনাকে বলল তুমি কি আপনি কি বাড়িতে কাপড় সাফা করেন घर में क्या कपड़ा साफ करते हैं? तो बोले हाँ मैं करता हूँ। कैसे करते हैं? ना गंदा कपड़ा लेके बाल्टी में भिगोता हूँ उसमें डिटर्जेंट डाल के भिगो के कुछ समय रखता हूँ फिर उसके पश्चात मैं उसको हाथ में निचोड़ता हूँ ये करता हूँ फिर उसके बाद नल खोल देता हूँ पानी का जो नल है टैप वो खोल देता हूँ। उसके पश्चात जब पूजनीय बाबा पूछते हैं तार बाद তারপরে কি হয় তো গুরু ভাই বলছেন কি জল শুদ্ধ জল বালতিতে ভরে যায় আর তার মধ্যে এই যে गंदा पानी जो है वो उछल के बाल्टी से बाहर निकल के आता है। तो बाबा जी बोलते हैं उसके पश्चात कुछ देर अगर हम अपेक्षा करते हैं वेट करते हैं इंतजार करते हैं और धैर्य धर के अगर बाल्टी में पानी को टैप से आने देते हैं कुछ पश्चात क्या होता है बाल्टी में गंदा पानी सब निकल के चला जाता है और शुद्ध जल भर जाता है। जैसे ही उनका बात खत्म होता है तो पूजनीय बाबा जी बोलते हैं हमारा जीवन हमारा प्राण हम इस धरती पर जब एक जीवनी शक्ति लेके आए हैं हमारा कर्म हमारा चिंतन हमारा चलन में इतना भूल रहता है कि हम उसमें गंदगी हमारा प्राण में भरा रहता है। जब हम दीक्षा लेते हैं सतनाम ग्रहण करते हैं तब शुद्ध जल की तरह हम जब इष्टभूति करके अनवरत उनके साथ युक्त रहने के लिए कोशिश करते हैं और नाम ध्यान अनवरत करते रहते हैं तो सतनाम का प्रभाव हमारे अंदर आता रहता है शुद्ध जल की तरह। अगर हम धैर्य धरते हैं किसी का 1 महीने हो सकता है किसी को 3 महीने लग सकता है परंतु ये सत्य है खूब शीघ्र हमारे प्राण में ये शुद्ध जल भर जाएगा और जब भर जाएगा हमारा मन हमारा प्राण हो जाएगा शांत हो जाएगा और खूब शुद्ध हो जाएगा और तभी हम जो सोचेंगे उन्हीं का बात सोचेंगे उन्हीं का बात उनको खुश करने के लिए कोशिश करेंगे और तब हमारा जीवन में मंगल शुरू होता है और सार्थक होता है। तब आपको इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा धैर्य धरना पड़ेगा। कितनी सुंदर बात मैं आंखों में आंसू आ गया। हे ईश्वर आप जो दया करके मुझे ये जो रास्ता मार्ग दिखाए तो मेरे विश्वास और बढ़ गया और मैं घर तो वापिस आया और खूब निष्ठा के सहकार वो नाम ध्यान करने लगा और इष्टभूति करने लगा और इष्टभूति करते करते और उनका नीति विधि पालन करने लगा और जो खूब सुंदर करके 5 नियम श्री ठाकुर दिए हैं जाजन इष्टभूति और सुस्तैनी सदाचार उसको परिपालन अनुशीलन करने जब मैं कोशिश करने लगा और खूब निष्ठा सहकार तो मुझे धीरे धीरे उनके प्रति आया गंभीर अनुगत्य अनुराग और उनके प्रति गंभीर अनुगत्य अनुराग में मेरा जो विचार करने का जो क्षमता है वो धीरे धीरे बदलने लगा। मैं देखने लगा कि श्री ठाकुर जैसे मुझे चाहते हैं मैं धीरे धीरे ऐसे सोचने के लिए मेरा इच्छा होना शुरू हुआ क्योंकि हम उनको अनुसरण करते थे उनका शरणापन्न हुए सतनाम को मनन करते करते उनके प्रति अनुराग करके इष्टभूति करते करते निष्ठा आया और निष्ठा के माध्यम से उनको आया समर्पण और आया गंभीर विश्वास और हमारा चलन चिंतन आचार व्यवहार आचरण और अभ्यास सब कुछ तो ये जो सत नाम दिए हैं हमारा चरित्र गठन हमारा सब अभ्यास
व्यवहार और एक गुड बिहेवियर, कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत बहुत असीम उनका दया है। ये जो खूब सरल उपाय जो दिए हैं, और मन ही मन हम अकेले अकेले बहुत खुश होते थे, हंसते थे, कितना ये जीवन कितना धन्य हुआ। हम यही सपना के माध्यम से मैं एक मुखी हुआ, कन्वर्ज हुआ, एक आइडियल सेंट्रिक लाइफ आरंभ हुआ, उनके प्रति हमारे केंद्रित हुआ। तो तो मेरे मन में तब आया कि इस सपना में कितना ठाकुर जी का, श्री श्री ठाकुर जी का एक बात याद आया। किसी ठाकुर जी को एक भक्त ने पूछा, ठाकुर जी, श्री श्री ठाकुर जी, आप तो इस युग में आए, 7 नाम दिए हमें प्रदत्त किए हैं, तो आप बाकी युग में पहले जितने अवतार में आए थे तो आप क्या अलग नाम लेके आए थे क्या था कि जे आगे जे अवतार नहीं असलन? तो ठाकुर जी बोलते हैं नहीं, युग युग में जैसे प्रयोजन होता है मैं ऐसे ही नाम लेके आता हूँ। जैसे कि ठाकुर श्री श्री ठाकुर कितना सुंदर रूप के एक उदाहरण देके बोलते हैं, जैसे रेडियो है, हम गाना सुनते हैं, कभी शॉर्ट वेब में सुनते हैं तो कभी मीडियम वेब में कुछ गाना अलग अलग वेब में सुनते हैं। तो श्री श्री ठाकुर बोलते हैं जैसे युग में जिस तरह का तरंग का प्रयोजन है, जिस तरह का नाम का प्रयोजन है, ऐसे ही नाम लेके मैं आता हूँ। जैसे कि अब हम लोग सब लोग जानते हैं पूर्ण चंद्र, फुल मून, पूर्णिमा आता है, पूर्ण चंद्र आता है, कभी कभी चंद्र प्रतिपद में आता है तो कभी कभी द्वितीय चांद आता है। पुरुषोत्तम उन्हीं पूर्णांश संपूर्ण अवतार में आए हैं। तो श्री ठाकुर बोलते हैं ये जो 7 नाम है ये धुनात्मक नाम है। विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि जहाँ पे हुआ है इस कंपन से शुरू हुआ है, 7 नाम से, और ये कंपन है एक परिपूर्ण हो सकता है। ही इज द फुलफिलर ऑफ द बेस्ट। वो ये 7 नाम करने से ये हमारा मोटिवेशन आता है। ये 5 नीति प्रदत्त किए हैं, विधि विधान जो 5 विधि दिए हैं, उसको बहुत अनुरक्ति, बहुत अनुरक्ति अनुराग से करते हैं हम, हमारा जीवन में परिवर्तन आता है। ऐसे ही कुछ घटना माध्यम से मैं आप लोग को जरूर बोलना चाहूँगा। Just a reminder, we have 8 minutes more and we have to join this. So 2-3 minutes, Okay. is it possible? Okay, brother. Thank you, brother. Thank you. Sorry to interrupt. एक बार आचार्य देव नाट मंडप में बैठे हुए थे रात को, तो आचार्य देव हम बोले, हम एक जगह बैठे थे, आचार्य देव का दर्शन करते करते तेजपुर मंदिर में, तो आचार्य देव बोलते हैं तो हम श्री ठाकुर और हमारा बाबा पितृदेव আমার কোনো আকার নাই, আমার কোনো বিকার নাই। আমি যখন সূর্যোদয় হয় আমি সূর্যের কিরণটাকে একটু বিন্দু নিয়ে আমি এই ধরতি पर আসে, আর যখন সূর্যাস্ত হয় আমি ওখানে গিয়ে লীন হয়ে যাই। না আছে আমার কিছু আকার, না আছে আমার কিছু বিকার, আমি নিরাকার। আমি সব সময় সব যখন করি তখন আমি তার সামনে দর্শন দিয়ে তার কষ্ট আমি অনুভব করতে পারি, আর তার সমাধান, তার রাস্তা আমি দিয়ে। তাহলে আমি দেওঘরে বসে থেকে কি আমি সুদূর বাংলাদেশ থেকে, সুদূর আমেরিকা কানাডা থেকে যখন আমাকে গুরু ভাই প্রাণী দীক্ষা নিয়ে কি না নিলে যদি আমাকে আত্ম নিবেদন করে, তাহলে আমি তার সামনে দৃশ্য হয় আর আমি আমার দয়া তার কাছে থাকে। জি ভাই, আমার মনে সময় কম আছে, সবাই মঙ্গল কামনা করে আমি এখানে আমার বিরাম দিব। আমি বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে শ্রদ্ধেয় দাদা, নেক্সট টাইম আপনি আমাকে সময় দিবেন এই অনুরোধ থাকবে আপনার কাছে, মানে আমাদের সবাইকে আর কি। আসলে আমাদের সময়ের স্বল্পতার কারণে মানে এত সুন্দর দাদার কথাগুলো শুনছিলাম,
ট্রিমেন্ডাস, মানে এত ভালো লাগছিল, নিশ্চয়ই সবারই খুব ভালো লাগছিল। আমি যেন ঠাকুরের কাছে চলে গিয়েছিলাম মনে হচ্ছিল। দাদা, আপনি সময় দিয়েছেন, আমরা গ্রেটফুল আপনার কাছে, এবং নেক্সট টাইম আপনাকে পাবোই, অনুরোধ করছি আপনাকে। সদ্য দাদা মায়েরা, সত্যি মানে থামিয়ে দিতে আমার খুব কষ্টে শেষ হলো। তার আগে আজকে আমাদের সাথে যোগদান করেছে সিঙ্গাপুর থেকে উজ্জ্বল দা, আমাদের সাথে যোগদান করেছে চেন্নাই থেকে কল্যাণ দা, আমাদের সাথে যোগদান করেছে উড়িষ্যা থেকে মালকিন গিরিদা। আই ডোন্ট নো হোয়েদার ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বেঙ্গলি অর নট। তারপরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকেও যোগদান করেছেন অজ্ঞ, এবং আপনারা আমার সাথে থাকবেন। বাপিদা জয়েন করেছে বেনারস থেকে, বাপিদা এবং মা। জয়গুরু দাদা, জয়গুরু, জয়গুরু। তো সময়ের অভাবে আমাদেরকে আসলে শেষ করতে হচ্ছে। তো শাহুদার, লিঙ্গরাজ শাহুদার কথা শুনছিলাম মন্ত্রমুগ্ধের মতো, এবং আপনারা দেখেছেন যে আমাদের সুরাইয়া আক্তার ভাবি, আমাদের এক্স এমপি মহোদয়ের মেয়ে, যিনি শি ইজ ট্রাভেলিং ফ্রম পুরুষ সময়টা ধরে আমাদের সাথে আছেন, এখনো আছেন উনি। উনি গাড়িতে দেখেন তাহা আব্বাস, সে যে মুসলিম লেডি, কিন্তু উনি ঠাকুরকে অন্ধের মতো ভালোবাসেন, এবং শি ইজ ট্রাভেলিং মানে ফার্দার ডিস্ট্রিক্ট। সকালে গিয়েছেন, এখন ফিরছেন বিজনেসের কারণে। রাস্তা থেকে উনি বলেছেন, আমি কিন্তু তোমার সৎসঙ্গের কাছে অন বিহাফ অফ অল গ্রুপ ওয়াইজ মাদার্স আমি 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 কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তো শেষ করে দিব দাদা মায়েরা, শেষ করে এখন জয়রাধে